Good evening, everyone. Okay. See, yesterday we have seen like how to create the records and the related records, particularly one record, one individual record into the object. Now, for example, if we have created object of hiring manager class, and with this particular object HR, so we created one record inside the hiring manager, right? One record inside the hiring manager, like HR name equals to Rajkumar and location equals to this, and with this, after insert statement, this whole record will be going to be get inserted into the hiring manager object. Now, with respect to this record, we also have created one of the related position record. That is what we have seen. So basically, till now what we have covered, like with the help of Apex program, how we could insert the record inside any particular object. Either we could insert a single record or a record along with a single related record. That is also we have done, right? Now let's understand if I wanted to create records in bulk. Because see, if this is what the case, if I just wanted to create, if I just wanted to insert one record, so rather than writing a code, it would be much better if I go with the user interface only. That would be very simple and feasible, very obviously, right? If you just wanted to enter, if you just wanted to insert one record at a time, then why should we write down that much of the lengthy code for that? Why? There's no such requirement. So we should rather go to this user interface, and we should, after entering this detail, and if I press this save button, we could obviously, very obviously, we could store one record at a time. Same with every object, same with every object. You go to the position, you wanted to enter one new record, only one new record. So and if this is the use case, and if we wanted to enter, record only one record rather at a time, so there is no such need. There is no such need that you should write down this much of the lengthy codes for that. Actually, whenever we write the code, it's actually for the bulk insert operation. That is what the thing. Try, you might have an, you might be agree with this concept, because if we just wanted to insert one record at a time, then why should we write down that much of the lengthy code? We could definitely do this with the user interface. We could go and click this new button, we could enter the fields over here, and then after pressing the save button, that particular record will very obviously going to get stored, right? So if we just wanted to store one record, if this is your use case, then there is no such meaning to go and write down the code for that. Rather, it's always used, it's always good, it's always feasible that we go with the user interface part, and there we enter the whatever we wanted to be entered for the fields, for the particular fields, and then just try to save the record. That's it. But see, if I ask you to create 10 records, if I ask you to create 50 records of the hiring manager, if I ask you to create 100 records of the hiring manager, then obviously this technique won't work, right? Try to understand the necessity of the first. First of all, you must understand okay, what is the necessity, because record can be inserted from user interface by pressing this new button and then entering the fields and then pressing the save button. This is also one of the technique. And the second is what we have learned yesterday with the help of the programs also, by creating the class, by creating the object, and then with respect to object, with respect to object, and then after firing this DML statement insert, so you could also insert the record. But then try to identify the requirement, try to identify the differences between these two techniques. So what is the use case? If you are entering just one record, if you're entering just one record, do always do this with the user interface. But rather, but whenever we wanted to insert multiple records, whenever we wanted, whenever we are intended to enter multiple records in the bulk, then we should always, that time we cannot follow this. Is it feasible that you always, for the 100, for the next 100 time, you always open this, enter the value, and then create the save button? Obviously this is not the procedure. So if this is the case that we will be entering only one record, we should always go with the user interface. And if we are entering, records in bulk, if we are entering records in bulk, then we should always go with the programming. अब यहाँ पर भी ना, जब रिकॉर्ड हम बल्क में एंटर करते हैं, तो उसकी जो एक्चुअल टेक्निक है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कलेक्शंस. कलेक्शन अभी होने का है आपका. सो मैं एक एक टेक्निक से आपको अवेयर तो करा देता हूँ अभी, ठीक है? एक टेक्निक से आपको अवेयर तो करा देता हूँ, बट देन एट द सेम टाइम ये मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा अभी आपको. So that इसकी जो एक्चुअल टेक्निक है, where we use, whenever we wanted to insert records in bulk, we always make the use of collections. तो ये अभी हमारा, इसके बाद में पहले तो आपको प्रोसीजर्स पढ़ानी है मैंने, तो प्रोसीजर्स के बाद में देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक. कलेक्शन के तीन टाइप होते हैं, लिस्ट, सेट एंड मैप.
So with the help of collection, always we are going to perform this bulk insert, bulk update operations. Insert, update, delete, whatever the DML you wanted to perform. We are intended to perform this operation into bulk. तो उसको कैसे करते हैं वो हम एक्चुअली कलेक्शन के माध्यम से मतलब सीखने वाले हैं. वी विल बी यूजिंग द मेथड ऑफ द कलेक्शन. लेकिन अभी मैं एक मेथड आपको सिखाता हूँ और उसके बाद फिर उसके ड्रॉबैक्स पे डिस्कस करता हूँ. Now let's take this as an example. So we have, we wanted to insert 100 hiring managers record. We wanted to insert 100 hiring managers record. Okay. So what I'm going to do is like, let me show you that code. So let's first of all go to the developer console. There also let's open the execute anonymous window. Fine. So what is my use case? What is my use case? This is my use case. So let me copy and paste it over here. So I'm making a single line comment. We wanted to write a program where we could, insert 100 hiring manager records at a time. तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम वी कुड डू दैट. तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी. तो सबसे पहले आपको एक लूप फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. लूप लाइक इंटीजर काउंटर इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1. ठीक है. एंड देन काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 100 एंड देन काउंटर प्लस प्लस. तो ये एक जो नॉर्मल आपका फॉर लूप होता है वही लिया मैंने. ठीक है. एक नॉर्मल फॉर लूप लिया. तो दिस लूप will start from the value of 1, it will goes till the value 100 है ना. 1 से लेके 100 तक काउंट करेगा ये. अब यहाँ पे we wanted to insert the value inside hiring manager. तो hiring manager object का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. हायरिंग मैनेजर क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. So let me try to find out the name of the class. So name of the class is hiring manager underscore underscore C. Why? Because this one is a custom object, right? So for every custom object, we must append underscore underscore C. तो मैं इसके लिए जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ. Let me create an object called as HRM. Hiring manager equals to new once again and make it a default constructor. This you know, right? This you know. तो what I just have created, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. कौन सी क्लास का? हायरिंग मैनेजर क्लास का. Now with respect to this, I will be inserting the values inside the hiring manager object. तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट में फील्ड्स कौन कौन सी है. जैसे आपकी स्टैंडर्ड फील्ड से आप नेम इंसर्ट करो. और अदर आप यहाँ से भी देख सकते हो ना. इफ यू वांटेड टू इंसर्ट द वैल्यू, एक रिकॉर्ड अगर आपको इंसर्ट करना है तो व्हाट आर द फील्ड्स. एक तो नेम है, HR ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है और लोकेशन. और लोकेशन एक पिक लिस्ट है तो उसकी वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए, है ना. तो ये जो 4 वैल्यूज हैं इसका डेटा टाइप हम लेते हैं. तो सबसे पहले आएगा नेम. सो लेट मी गो विद दिस. सो HRM डॉट द फर्स्ट थिंग इज नेम. HRM डॉट नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू. सो लेट मी गिव दिस वैल्यू. तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, bulk HR record number, let me give one space, plus counter. Let's see whether it's going to work. ठीक है. So bulk HR record number 1, record number 2, I'm actually trying to enter it in this way. तो अगर ऐसा करता है तो ठीक, नहीं तो दूसरा लेंगे. ठीक है. And then HRM dot the next field, name के बाद में let me try to insert this field. So I'm just copying and pasting it over here. So contact number is also a string. तो एक contact number देते हैं, for example 887766554433. So for every 100 records, सारे के सारे 100 records के लिए this is going to be the value. This is going to be the value. Then HRM dot अगला है HR email ID underscore underscore C. I'm just copying the name of the fields because ये custom object है इसलिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ. email ID is always a string. ये भी एक string है. तो here I could give like sample HR @test.com. ठीक है, with this name. And then the next is like HRM dot ugly field is HR ID is an auto number, so उसको आप छोड़ दीजिए. That is something which is automatically going to be get generated.
और रोल अप समरी ये भी नहीं देते। दो चीजें जो रीड ओनली फील्ड्स होती है ना, रीड ओनली फील्ड्स की वैल्यू यहाँ से नहीं दी जाती है, अदरवाइज यू विल गोइंग टू गेट द एरर, क्योंकि दीज आर सिस्टम जनरेटेड। जब हमने रोल अप समरी पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कि व्हाट्स रोल अप समरी। रोल अप समरी इज अ सिस्टम जनरेटेड वैल्यू। ऑटो नंबर इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिस्टम जनरेटेड वैल्यू। ऑटो नंबर भी जो है आपका, दिस इज ऑल्सो सिस्टम जनरेटेड, या रोल अप समरी इज ऑल्सो सिस्टम जनरेटेड। तो जो सिस्टम जनरेटेड वैल्यू है वो वैल्यूज आप कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको एरर आता है, इफ यू ट्राई टू डू दिस आपको एरर देता है एपेक्स कंपाइलर, दैट्स व्हाई। तो अब मैं अगली वैल्यू लेता हूँ लोकेशन। तो एचआरएम डॉट लोकेशन। नाउ लोकेशन इज अ पिक लिस्ट। लोकेशन इज व्हाट? लोकेशन इज अ पिक लिस्ट। तो इसका जो वैल्यू रहना चाहिए, जो भी वैल्यू आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हो, दैट मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द पिक लिस्ट। ठीक है, अगर पिक लिस्ट के अंदर नहीं होगा तब भी आपको एरर आता है। तो अगर आप अदर देन द पिक लिस्ट इफ यू ट्राई टू इंसर्टिंग एनी अदर वैल्यू तो आपको फिर एरर मिलता है यहाँ पे। सो लेट्स नाउ इंसर्ट एचआरएम। लेट्स नाउ ट्राई टू इंसर्ट एचआरएम, लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ थोड़ा सा डाउट है मेरे को इस स्टेटमेंट में। ओपन लॉग, वन सेकेंड। तो टाइमिंग मैंने कहीं ना कहीं किया होगा इसको। ठीक है, एक सिस्टम डॉट डीबग भी दे देते हैं कि इफ एचआरएम डॉट आई डी इज नॉट इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, ठीक है, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल दैट मीन्स रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो देन सिस्टम डॉट डीबग हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली विद द आईडी, आईडी इक्वल्स टू प्लस व्हाट एचआरएम डॉट आईडी। जो भी आईडीज जनरेट होती जाएंगी, जितनी भी आईडीज जनरेट होती जाएंगी, दैट इट्स गोइंग टू गिव एचआरएम डॉट आईडी। ठीक है, तो एक बार कोड इवेलुएट कर लेता हूँ। व्हाट आई हैव डन, मैंने एक लूप फॉर्म किया बिकॉज आई वांटेड टू इंसर्ट 100 हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड्स। तो मैंने एक लूप फॉर्म किया। लूप चलेगा मेरा 1 से लेके 100 तक। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, काउंटर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, इंटीजर काउंटर, और जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू दी है 100 1। इसके बाद में जब ये 1 से होगा तो फिर ये कंपेयर करें कि वेदर 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 100। तो पहली कंडीशन ट्रू होती है, 1 इज लेस देन 100। तो 1 इज लेस देन 100 तो इट विल गो इनसाइड द लूप, लूप के अंदर जाता है। एंड देन लूप के अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा हायरिंग मैनेजर क्लास का। ठीक है, सो हायरिंग मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया एचआरएम। उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू एचआरएम हमने नेम की वैल्यू, कॉन्टैक्ट नंबर, एचआर ईमेल आईडी, लोकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर हमने उसको इंसर्ट कर लिया। और जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अगर ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो इसकी आईडी भी जनरेट होगी। तो वो आईडी को मैं पुल कर रहा हूँ यहाँ पे एच आर एम डॉट आई डी से, पहले तो चेक कर रहा हूँ कि इफ इट इज नॉट नल, मतलब अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो आईडी जनरेट हुई है, दैट मीन्स इट इज नॉट नल, आईडी में कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो यू विल गो इनसाइड। आप ये पहला पहला जो मैसेज है, पहली बार मैसेज प्रिंट होगा कि हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली विद द आईडी, और यहाँ पे आईडी प्रिंट हो जाएगी, ये पहला। तो उसके बाद ये लूप ऊपर जाएगा, काउंटर को 1 से प्लस प्लस कर देगा, तो काउंटर की वैल्यू थी 1, 1 से हो जाएगी 2। देन इट विल चेक फॉर द कंडीशन वेदर 2 इज लेस देन 100, तो भी कंडीशन ट्रू मिलेगी। ये फिर से अंदर में जाएगा और सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। ठीक है, पहले रिकॉर्ड का नाम रहेगा बल्क एचआर रिकॉर्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि यहाँ मैं काउंटर की वैल्यू साथ में देते चला जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये एक एक करके सारी 100 वैल्यूज इंसर्ट कर देगा, सारी 100 वैल्यूज इंसर्ट करेगा। और यहाँ पे ये इंसर्ट स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है? 100 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। पहली बार जब लूप में आया तब भी एक बार इंसर्ट हुआ, सेकेंड टाइम आया तब भी इंसर्ट स्टेटमेंट, थर्ड टाइम। इस तरह से ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट है, ये जो डीएमएल स्टेटमेंट है, ये आपकी 100 बार एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, एंड इट विल गोइंग टू इंसर्ट 100 हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड, और 100 बार ये मैसेज जो है आपको प्रिंट होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आइडियली शुड हैपन। लेट्स सी व्हाट। सो यहाँ से तो रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम ओके है। एंड अभी आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। सो लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ देखो आप, ये दिख रहा है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, लेकिन आई नीड टू स्क्रॉल इट डाउन। मैं स्क्रॉल कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इतने रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इतने रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, इतनी आईडीज जनरेट होगी। नाउ लेट्स गो टू द सेल्सफोर्स साइड। यहाँ चलते हैं, हायरिंग मैनेजर्स में चलते हैं। सो हायरिंग मैनेजर में ऑल, एंड यू सी हायरिंग मैनेजर बल्क एचआर रिकॉर्ड नंबर 1, फिर ये 1 यानी 10 ऐसे लेता है, बट एक्चुअली 1, फिर उसके बाद में 2 से लेकर बल्क एचआर रिकॉर्ड नंबर 100, मतलब टोटल 100 रिकॉर्ड आपके इंसर्ट हो चुके हैं। सो बेसिकली यू नो दिस इज वाई whenever this is the use case कि we wanted to insert bulk record, whenever this is the case we wanted to insert bulk records, ठीक है, then we always follow programming path, then we always follow the programming path।
अगर एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता तो फिर ये आपको प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है. You should directly go to the user interface. Make it, see, always try to make this as simple as possible for everyone. Try to make the things as feasible, as simple as possible. Because Salesforce is intended to do that. And don't make the things unnecessary complex for yourself and for everybody else around. Right? So agar if this is the matter that you just wanted to insert one record, then there is no need to go with the programming. You should always follow this user interface path. But if this is the case that you wanted to insert more than one records and the records in the bulk, then pressing new button and then filling the form and then saving this, this is not feasible. That time we should always follow what programming path. अब यहाँ क्या ड्रॉबैक है, यहाँ पे क्या ड्रॉबैक है, लेट्स नाउ डिस्कस दैट. तो वैसे तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है. यू कुड बिल्ट अप द सेम प्रोग्राम फॉर एवरी अदर ऑब्जेक्ट इफ यू वांटेड टू ट्राई. इफ यू वांटेड टू ट्राई, तो आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट कि आप ना पोजीशंस में 50 रिकॉर्ड और कैंडिडेट में 100 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना with the same code what I have written. But I'm asking you to insert 50 records in the position and then 100 records of candidate in the candidate object. Try to do that. Try to do that with the same kind of code. Loop तो same रहेगा, बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, you should actually require to change this code. अगर hiring manager है तो hiring manager, अगर आपको position कह रहा हूँ तो actually you would require to you would require to first of all create the object of position एंड देन उस ऑब्जेक्ट की नेम को कॉल कर करके आप जो है सारी फील्ड्स करके पोजीशन में इंसर्ट कर लो. तो बाय द वे दिस इज द वे, दिस इज द वे वी कुड इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन बल्क. And this is why we are learning this. This is the main reason why we are learning to insert the records into the object from the concept of programming. From the concept of programming, by creating the object and then with referring to the object, referring to the name of the field, we are inserting the record. So this is the main reason why we are learning how to insert the record with the help of programming. Why? Because we wanted to insert the records in bulk. That is what the reason. लेकिन अब यहाँ ये बहुत बड़ा drawback है. If you follow this process, if you follow this process, let me show you something. Yesterday I have showed you about the governor limits. Yesterday I have showed you something about the governor limits. See, you could maximum use 150. You could maximum use 150 DML statements, not more than that. You have used how many? 150. You have used 100. ठीक है, that is close to limit. देखो बता रहा है यहाँ पे, that is close to limit. ठीक है, अभी मतलब एक प्रोग्राम के अंदर I could maximum use 150 DML statements, not more than that. How many I have used? 100. 100 मतलब एक्चुअली इंसर्ट स्टेटमेंट आपका 100 टाइम्स कॉल हुआ है ना, दैट इज वाई शोइंग यू 100. ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट है आपकी, फर्स्ट टाइम जब काउंटर का वैल्यू 1 था, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ से मैं एक एरर कोड आता है 101 एंड दे विल आस्क यू दिस इन द इंटरव्यू, व्हाट डज इट मींस बाय एरर कोड 101 एंड व्हाट हाउ यू कुड व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट. I mean, how could you avoid that error code 101? वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ लाइव. सभी लोग ध्यान से समझो इस चीज को. ठीक है, तो व्हेन द काउंटर वाज 1, काउंटर की वैल्यू 1 थी, यू फर्स्ट टाइम फॉर यू एंटर इनटू द लूप. एक बार तब आपने फायर किया इंसर्ट को. उसके बाद जब ये सब कुछ सही हो गया, आप वापस गए. यहाँ जाने के बाद काउंटर को 1 से प्लस किया, काउंटर बिकम 1 + 1 = 2. देन इट विल चेक फॉर द कंडीशन वेदर 2 इज लेस देन 100. हाँ, 2 इज लेस देन 100, इट विल अगेन कम बैक टू द लूप. इट विल एंटर्स इनसाइड द लूप एंड अगेन एक और इंसर्ट फायर हो गई. यानी अब इंसर्ट कितनी बार हो गई? 2, फिर 3 एंड दिस गोज ऑन. तो इंसर्ट स्टेटमेंट एक ही नजर आ रही है, लेकिन फायर कितनी बार हो रही है? 100 टाइम्स. इसीलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव यूज 100 डीएमएल स्टेटमेंट्स. ये जो बता रहा है ना आपको, ये इसीलिए बता रहा है. अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको. लेट मी ट्राई टू शो यू समथिंग मोर. ठीक है, अभी अभी हमारे टोटल रिकॉर्ड्स कितने यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू सी. अरे यार कहाँ हूँ मैं? हाँ, हायरिंग मैनेजर्स में. सो we are having 113 records. ठीक है, okay, let me try to insert 100 more or more than 100. Okay, 113 plus let me try to insert 150 records. ठीक है, so it's like कि कितने यहाँ पे 113 and I will be trying to insert 150 more. Okay, so it should become 263. Okay, it should become 263. Fine, let's see that. तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा रिकॉर्ड्स में I'll make some changes over here. Instead of giving this name, let me try to give some another name like
simple HR, simple HR, number one, number two, number three, something like this. Okay. So I will be giving this, ये नाम से मैं insert करता हूँ, and this time I'm trying to insert 150 records. तो sample 1 से लेके sample 150 तक, ठीक है, sample 1 से लेके sample 150 तक it's going to insert the record. Let me try to do this. सो मैं अगर देखो 100 पे किया तब भी मेरे को एरर नहीं आया, 150 किया हूँ तब भी एरर नहीं आया एक्चुअली, ठीक है, 150 किया है तब भी एरर नहीं आया एक्चुअली, इट्स हैज ऑल दोस 150 रिकॉर्ड्स हैव बीन इंसर्टेड, ठीक है, जो 150 रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है. नाउ इफ यू गो टू द सेल्सफोर्स एंड इफ यू ट्राई टू रिफ्रेश दिस वंस अगेन, if you try to refresh you will now have 263 record, right? That is what we were expecting. तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका सैंपल के नाम से आपको रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है. लेट्स गो टू द लिस्ट ऑफ एस. तो सैंपल 1 2 से लेकर सैंपल 150 तक, तो ये 100 है, समवेयर अराउंड 150 भी होगा इसमें, 1 2 4 1 5, यू नो. आई शुड गो टू द नेक्स्ट पेज. तो मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो मेरे को 150 मिल जाएगा. सैंपल 99 previous somewhere around 150 will also be there, ठीक है, वो मिल जाएगा. बट या फॉर श्योर 150 रिकॉर्ड्स हैज बीन इंसर्टेड. चलो, तो 150 रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया. अभी अगर मैं एक बार गवर्नर लिमिट चेक करना चाहता हूँ तो मैं डीबग ही हटा देता हूँ, यहाँ वापस आता हूँ, यहाँ देखो 150 आउट, दैट इज क्लोज टू लिमिट. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन अगर मैं 150 से भी ऊपर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट 200 रिकॉर्ड, ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है, लेट मी ट्राई विद दिस, ठीक है, HR. अब यहां पर आएगा आपको एरर. लेट्स सी. This is what the error is. Too many DML statements, 151. Too many DML statements, 151. So this is the error. They will ask you this. एक तो 101 और 151. 101 और 151. ठीक है, ये दो एरर पूछे जाते हैं. What is this error? What is this error? Error code 151. वो इतना नहीं बोलेगा too many DML statements वगैरह. He is not going to tell you. You need to understand कि ये कोड कब जनरेट होता है. एरर कोड 151 ये कब जनरेट होता है, तो ये तब जनरेट होता है कि व्हेन वी गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ डीएमएल. एक ट्रांजैक्शन में, एक ट्रांजैक्शन से मतलब विद इन द स्कोप ऑफ वन प्रोग्राम वी कुड मैक्सिमम एग्जीक्यूट 150 डीएमएल स्टेटमेंट्स. एंड इफ यू ट्राई टू इंसर्ट मोर देन 150, that time Salesforce won't allow you to do this, and Salesforce give you one error called as system.limit exception. What kind of exception? Limit exception. जैसे system.debug होता है ना, system, I already told you system is a class, उसमें एक मेथड आती है लिमिट एक्सेप्शन. व्हाट इज दैट एरर? एरर ये तो हो गया आपका एरर का क्लास, ठीक है, और ये है एरर एंड एरर मैसेज, एंड दिस इज एरर कोड. Too many DML statements, 151, 151, error code 151. So they will ask you कि error code 151 जो है, what will be the scenario when this error code 151 is generated? So you need to say when you are trying to perform, when you are trying to perform some of the DML, and that to be you're going beyond the limit of Salesforce governor limit of DML. Because Salesforce permit you to perform in a single transaction maximum you could execute how many DML statements? 150. एंड इफ यू ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज बियॉन्ड 150, जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, दैट टाइम Salesforce गिव यू दिस एरर, टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स 151. और ऐसी एसक्यूएल में आएगा 101, 101 एरर बोलते हैं जिसको. जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन मैक्सिमम यू कुड गिव 100 एसक्यूएल क्वेरीज, जब मैं बताऊंगा. और जब मैं एक 100 क्वेरी से ऊपर जाता हूँ दैट टाइम ऑल्सो, तो उसमें 101 आता है, 101, और यहाँ आता है 151. तो दिस इज द टू कॉमन क्वेश्चंस कि when will be you getting error code 151, when will be getting error code 101. तो यू अभी 101 जब आएगा उसका डिस्कशन करेंगे, अभी 151 आपके सामने लाया मैंने. सो whenever in a single transaction, whenever in a single program you are attempting to insert, update, delete, I mean you are attempting for a DML operation, that to be more than the data of 150, then at that particular time, and the Apex compiler will throw you one error. It will stop, ये execution stop हो गया है, ये this execution is actually rolled back, ये कुछ भी insert नहीं हुआ है, कुछ भी insert नहीं हुआ है अभी. If you go and try to see कि क्या ये insert हुआ है, तो नहीं हुआ, ये पूरा execution जो है stop हो चुका है. तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं है अभी, HR नंबर 1234 नहीं है. आप इफ यू वांटेड टू क्रॉस वेरीफाई यू कुड इवन गो एंड ट्राई टू रिफ्रेश. 153 का काउंट है यहाँ पे. ओके, नहीं, मैं ऑल पे जाता हूँ, सॉरी.
263 का काउंट है, एंड इफ आई ट्राई टू रिफ्रेश, देखो 263 है. सो दैट मीन्स नथिंग हैज बीन इंसर्टेड. नथिंग हैज बीन इंसर्टेड, द एंटायर ऑपरेशन हैज बीन कैंसिल्ड, द एंटायर ट्रांजेक्शन हैज बीन कैंसिल्ड, द ऑपरेशन हैज बीन रोल बैक. तो ये होता है डीएमएल का एरर 151. तो ये जो ड्रॉबैक है ना, इसको हटाना है हमको, बट उसके लिए हम कलेक्शन से जाएंगे. तो देखिए, ये आप खुद सोचिए, रियल टाइम पे हम हर बार 150 डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते. वी एक्चुअली शुड, we actually should have the provision to insert millions of the record, thousands of the record. That time हम 150 की उसमें थोड़ी ना जा सकते हैं. अब खुद सोचो कि if अगर मुझे 1.5 लाख डेटा इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई वांटेड टू इंसर्ट 1.5 लाख ऑफ डेटा, ठीक है, इतना डेटा मुझे इंसर्ट करना है, तो आई कैनॉट डिवाइड दैट डेटा बाय 150 और उसके उतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन चलाऊंगा. ऑब्वियसली दिस इज नॉट द थिंग. तो ये बेसिकली आपने सीखा तो सही कि डेटा रिकॉर्ड्स बल्क में कैसे इंसर्ट करते हैं, बट देन दिस इज नॉट द प्रोसीजर टू डू दिस. ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है. ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है. हम आपको मैं सिखाऊंगा आगे चल के कि दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे. Never ever, this DML statement is not, never, we never put the DML statement inside the loop. लूप के अंदर, यानी यहां से यहां तक आपका लूप है, ये आपका लूप है. दिस ऑल आर द इनसाइड द लूप. ये लूप की बॉडी है, राइट. या लूप स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से लेके यहां तक आपका लूप है. दिस कंप्लीट इज योर लूप. लूप के अंदर कभी भी डीएमएल स्टेटमेंट नहीं दी जाती है. ये डीएमएल स्टेटमेंट हमेशा लूप के बाहर यहां पे दी जाएगी. तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको बताऊंगा. अभी इसके बाद जब आप कलेक्शन पे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 150 200 क्या बहुत छोटी बात है. थाउजेंड्स ऑफ द रिकॉर्ड, थाउजेंड्स ऑफ द रिकॉर्ड, अप टू 50,000 ऑफ रिकॉर्ड, अप टू 50,000 ऑफ रिकॉर्ड एक ही बार में इंसर्ट करते हो आप, सिर्फ एक डीएमएल फायर करके. यहाँ पे जैसे मुझे 100, इफ आई वांटेड टू इंसर्ट 100 रिकॉर्ड, तो मेरे को 100 टाइम्स डीएमएल लगानी पड़ी. इफ आई वांटेड टू इंसर्ट 150 रिकॉर्ड, तो मेरे को 150 डीएमएल लगानी पड़ी, 150 इंसर्ट स्टेटमेंट. 150 के ऊपर गया तो मेरे को फटक से एरर दे दिया उसने. लेकिन अभी इसके बाद जब आप सीखोगे ना, तो उस तरीके से सीखोगे कि ये तो बहुत छोटी बात है. वी विल एट मैक्स इंसर्ट इन 550,000 रिकॉर्ड इन अ सिंगल स्नैपशॉट with using one insert statement only. By using just one insert statement, you will be able to insert, more than 50,000 records at a time with a single transaction. अब वो कैसे होता है ना, वो आगे सीखेंगे हम. तो ये एक मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना था कि दिस इज एक्चुअली द वे व्हाई वी आर लर्निंग टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द प्रोग्रामिंग. तो हमें रिकॉर्ड बल्क में जब भी इंसर्ट करना होता है तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द टेक्निक फॉर डू दैट. ठीक है, चलिए, जो भी टेक्निक है आगे चल के पढ़ने वाले. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट इज द सब प्रोग्राम. देखो, अभी तक एक डिफिकल्टी थी हमारे साथ. इवन दो इवन दो आई क्रिएटेड द क्लास फ्रॉम हियर, मैं क्लास तो सेव कर रहा हूँ. Even though, let me try to understand what difficulty what we are facing. Even though I created a class and I even have saved this class, मैंने इस क्लास को सेव भी कर लिया है. बट बट वेन एवर आई वॉन्टेड टू एक्सेस दिस क्लास, जब भी इस क्लास को मुझे एक्सेस करना था, सो आई कैनॉट राइट दिस कोड ओवर हियर. उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा था. फॉर दैट आई शुड एक्चुअली रिक्वायर टू गो टू द एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो. मतलब मुझे एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो पे जाना पड़ रहा था. आई शुड गो टू द एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो. यहाँ पे जाने के बाद में मैं क्या करता था, यहाँ पे जाने के बाद में व्हाट आई वाज डूइंग इज लाइक, जैसे अब ये क्लास बना रखी है आप, ठीक है, दिस इज द क्लास व्हाट यू हैव मेड. तो मैं सबसे पहले तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता था. आई डिफाइन वन ऑब्जेक्ट ओवर हियर. ठीक है, कस्टमर इन्फो, सी इन्फो इक्वल्स टू न्यू, लाइक दिस, ऐसा. ये हो गया ऑब्जेक्ट. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस करता था. फॉर एग्जांपल दिस डॉट योर कस्टमर कोड, लाइक दिस, और फिर उसकी वैल्यू देना समथिंग लाइक दिस, ऐसा. एंड इवन इफ यू वांटेड टू प्रिंट, तो हम यहाँ से प्रिंट कर रहे थे सिस्टम डॉट ई पर, है ना, यहाँ से हम लोग प्रिंट कर रहे थे. ओके, कि आपका लाइक कस्टमर कोड जो भी है, कस्टमर कोड इक्वल्स टू प्लस व्हाट सी इन्फो डॉट कस्टमर कोड, सी इन्फो डॉट कस्टमर कोड, ऐसा. तो अब देखो, इतना कोड तो मेरा सेव्ड है, ये कोड मेरा सेव्ड है. व्हाट वाज रियली हैपनिंग कि ये कोड सेव नहीं हो रहा था मेरा. ये अभी भी डिपेंडेंसी हमारी बनी हुई थी, अभी भी हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई थी. मतलब जब हम यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे कुछ टाइप करते थे, तो उसको कॉल करने के लिए हमें एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो लेना पड़ रहा था. और सारे वेरिएबल्स वगैरह हम यहाँ पे, मतलब जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू है वो सब यहाँ से देते थे, यहाँ से कॉल करते थे. तो उसमें प्रॉब्लम क्या जा रही थी
क्या आपको ये कोड तो सेव्ड है, ये कोड सेव नहीं होता है। तो अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि ये जो दो दो अलग अलग जगह से स्प्लिट करके जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, कि यहाँ से यहाँ पर आप क्लास लिखते हो, फिर उसको अलग से डेवलपर कंसोल में उसको आप एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो से कॉल करते हो, तो ये फिर उस यहाँ से कॉल करोगे, उसके बाद फिर आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर आओगे फिर से। तो आप कहीं ना कहीं देखो ये इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा था अपने को ना, दिस इज समहाउ इट्स क्रिएटिंग द इनकन्वीनियंस। मैंने क्लास यहाँ डिफाइन कर रखी है डेवलपर कंसोल पे, ठीक है, उस क्लास को और उसके मेथड्स को मैं कॉल कर रहा हूँ फ्रॉम योर एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो। एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फिर मुझे आउटपुट देखने के लिए फिर से इधर आना पड़ता है डेवलपर कंसोल में। तो ये कैसा हो रहा है कि इस विंडो से इस विंडो पे और इस विंडो से इस विंडो पे आ रहा हूँ। सो दिस इज समहाउ क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और वो तरीका लिखते हैं एक्चुअली जिस जिस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। मतलब हम एक ही विंडो पे सारी चीजें चलने देंगे। तो हम यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास डिफाइन करी, यहाँ पे क्लास के मेंबर्स डिफाइन करें, और अब यहीं इसी जगह पे हम ये देखेंगे कि क्लास को एक्सेस कैसे किया जाता है, और वो पूरा कोड यहाँ पर ही सेव होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पढ़ानी है, वो है प्रोसीजर्स, मेथड्स। ठीक है, मेथड्स एक्चुअली मेथड्स है जिसको सब प्रोग्राम भी बोलते हैं। मेथड्स में फिर दो टाइप आते हैं, प्रोसीजर्स और फंक्शंस। ठीक है, दोनों के बीच बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो समझ लो। देखो, कोई भी ऐसी, जैसे एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो पे मैं, फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन दिस, सिस्टम, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग दिस सिस्टम डॉट, फॉर एग्जांपल डीबग। अब की जो डीबग लिया मैंने, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जो होता है हमारा, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड। ठीक है, आपको इसके पहले मैंने एक दो प्रोग्राम दिए जहां पर जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जब हमने प्रिंट किया था, इफ यू रिमेम्बर, डेट ऑफ बर्थ जब हमने प्रिंट किया था, फॉर एग्जांपल वो प्रोग्राम में, जैसे अभी सी इन्फो सी इन्फो डॉट, आई वांटेड टू गेट दिस डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू एंटर करने का, इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया था, सिस्टम डॉट टूडे, सिस्टम डॉट टूडे। ठीक है, ये मैंने यूज किया था, ये फंक्शन। तो ये ऐसी ऐसी जो भी आप देखो, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में, तो सबसे पहले तो ये समझ जाना कि ये एक मेथड है। ये बेसिकली क्या है, एक मेथड है। मेथड को एक और नाम है सब प्रोग्राम्स। मेथड को एक नाम और बुलाया जाता है, सब प्रोग्राम के नाम से भी बुलाया जाता है इसको। ठीक है, तो आप उसे चाहे सब प्रोग्राम बोलिए, या फिर आप उसे चाहे METHODS मेथड्स बोलिए, तो बेसिकली इट्स वन एंड सेम थिंग। ठीक है, ये बेसिकली इट्स वन एंड सेम थिंग, तो ये कुछ अलग नहीं होता है। आप चाहे उसको तो मेथड बोल दो, आप चाहे उसको तो सब प्रोग्राम बोल दो। अब ये जो मेथड्स होती हैं, जो सब प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनके दो टाइप्स होते हैं। देखिए, इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोसीजर, दूसरा होता है फंक्शन। अच्छा, कोई एग्जाम नहीं आने वाला, कोई वाइवा नहीं है, ठीक है, कोई वाइवा नहीं है, कोई पूछने नहीं वाला, इवन इंटरव्यू में भी नहीं पूछेंगे, ये भी समझ लो। लेकिन कैसा ना, भी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, पता होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी के हिसाब से पता होना चाहिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि डरो मत, अगर ये क्या, ये क्या, ये क्या है, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, अगर भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसा है ना, टर्मिनोलॉजी जब हम बातचीत करते हैं ना आगे चल के, तो तब यूजुअली थोड़ा सा ना अपना कंसेप्चुअल नॉलेज दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको ये पता है कि ये जो मेथड है ये प्रोसीजर की कैटेगरी में आती है, ये जो मेथड है ये फंक्शंस की कैटेगरी में आती है, तो आप जब स्पेसिफिकली बात करोगे कि दिस इज अ फंक्शन और उसके लिए बोलोगे प्रोसीजर, तो वो क्लियर कट समझ में आता है कि आपको ना अच्छा खासा डीप नॉलेज है इस बारे में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कोई एग्जाम नहीं होने वाला, कोई वाइवा नहीं होने वाला है, और मॉक में भी नहीं पूछने वाले हैं, इंटरव्यू में भी नहीं पूछने वाले हैं। लेकिन समझ लो, सबसे पहली एक जनरल जो टर्म है, ऐसी किसी भी जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसकी जनरल टर्म जो है उसको बोलते हैं मेथड्स। सबसे पहले तो मेथड्स के दो टाइप होते हैं, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। प्रोसीजर इन शॉर्ट वो होता है जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, मतलब जो फंक्शन उसको कॉल करता है ना, उसको वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि दीज आर लाइक फायर एंड फॉरगॉट, फायर करो और भूल जाओ, एंड या हियर इट इज लेकिन which doesn't returns any value to the calling environment, मतलब the return type of procedure is always void। प्रोसीजर्स जो होती है, मैं बताऊंगा क्या होता है। प्रोसीजर वो होता है जो अपने जिसने उसको कॉल किया है उससे कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसको कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसको जब भी कॉल किया जाता है वो अपना काम करता है और खत्म बात, काम किया बात खत्म। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, आपको आके वापस आके थैंक यू नहीं बोलता कि तुमने मेरे को कॉल किया भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रोसीजर ये नहीं करता है।
प्रोसीजर ये नहीं करता है। लेकिन फंक्शन, फंक्शन उस तरह की मेथड होती है जो अपना काम भी करती है और वापस आके तुमको थैंक यू भी बोल के जाती है। तो फंक्शन क्या है, अपना काम भी करेगा प्लस रिप्लाई भी देगा। तो वेनेवर वेनेवर अ मेथड, ध्यान से सुनो, वेनेवर अ मेथड रिटर्न समथिंग, वेनेवर अ मेथड रिटर्न समथिंग, समथिंग मतलब कोई भी वैल्यू, वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, आईडी हो, उसका डेटा टाइप छोड़ दो, डेटा टाइप प्रिमिटिव रहे, ऐसा ऑब्जेक्ट रहे, दैट इज नॉट द इशू। इंपॉर्टेंट क्या है कि वेनेवर अ मेथड रिटर्न समथिंग, वेनेवर मेथड रिटर्न सम वैल्यू टू द कॉलिंग एनवायरनमेंट, जिसने उसको बुलाया है उसको आके कुछ तो भी रिटर्न देता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फंक्शन। एंड whenever a method doesn't returns anything to the calling environment, उसको प्रोसीजर बोलते हैं। अरे देखो ना यार, ये अपन जैसे अपन लेटर वेटर पोस्ट करते हैं तो ना दो दो तरह के, जैसे आप किसी को, अभी तो कौन चिट्ठियां लिखता है पता नहीं, लेकिन हाँ जैसे अगर ऑफिशियल लेटर वगैरह अपन पोस्ट करते हैं ना, तो दो वो जब मैं मेरे को कैसे पता चला, अभी वो बीच में मैंने कुछ पोस्ट करने गया ऑफिस में, तो उसने बोला रजिस्टर्ड पोस्ट कर लो। मैं बोला ये क्या होता है? तो फिर उसने एक फॉर्म भरवाई, मुझे बताया कि देखो अगर ये जब डिलीवर होता है ना, तो ये आप जो भर के दे रहे हो उसमें अपना ही एड्रेस डालना पड़ता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाती है आपको। उससे क्या होता है, आपको क्या श्योरिटी हो जाती है कि अच्छा उसके एंड पे वो रिसीव हो गया है। तो अगर ऐसा कोई प्रोविजन है जहां पे आपने कुछ तो भी काम किया, एक फंक्शन को, एक मेथड को कॉल किया, उसने अपना काम भी पूरा किया प्लस आपको रिप्लाई भी दिया कि यस आई हैव बीन डिलीवर्ड, तो in that case the method is called as function। तो whenever a method returns something to the calling environment, जिसने भी उसको कॉल किया था उसको वो कुछ तो भी रिटर्न करके देता है, that kind of method is called as function। और वो मेथड जो कुछ नहीं देता, बस अपना काम करता है खामोश और खत्म, that kind of method is called as procedure। तो जो ऐसी कोई भी मेथड होती है ना, ऐसी कोई भी मेथड जब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, तो उसके लिए एक कीवर्ड है, वो है void। उसका जो रिटर्न टाइप होता है, माने ये क्या रिटर्न करता है, तो ये वॉइड रिटर्न करता है। प्रोग्रामिंग में वॉइड का मतलब होता है कि नथिंग, सच काइंड ऑफ मेथड विच डजंट रिटर्न्स एनीथिंग, सच काइंड ऑफ मेथड दैट डजंट रिटर्न्स एनीथिंग, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसी कोई भी मेथड जिसके नाम के आगे वॉइड लिखा है, ऐसी कोई भी मेथड जिसके नाम के आगे वॉइड लिखा है, दैट मेथड इज ऑलवेज अ प्रोसीजर, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और ऐसी कोई भी मेथड जिसके नाम के आगे तुमको और कुछ मिले, वॉइड नहीं दिखे, लेकिन जैसे मान लो इंटीजर लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये फंक्शन है। मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये या तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, आईडी लिखा है तो आईडी रिटर्न कर रहा है, अकाउंट लिखा है तो अकाउंट अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मेथड जिसके नाम के आगे वॉइड लिखा है ना, वो प्रोसीजर है, एंड द प्रोसीजर डजंट रिटर्न एनीथिंग। बट अगर ऐसी कोई भी मेथड जिसके नाम के आगे ना कुछ तो भी लगा हुआ है, जैसे इंटीजर लगा है कभी, कि तुम्हारा स्ट्रिंग लगा हुआ है ना, आईडी लगा हुआ है, डेट लगा हुआ है, तो समझ लेना कि ये जो है वो क्या है, फंक्शन है। और वो रिटर्न टाइप बता रहा है कि ये रिटर्न इंटीजर कर रहा है, इसके इसके नाम के आगे इंटीजर लगा हुआ, उसको रिटर्न टाइप बोलते हैं। बाकी चीजें जब अपन लिखना शुरू करेंगे ना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ना पहले प्रोसीजर से। ठीक है, पहले प्रोसीजर से, फंक्शंस तो आ ही जाएंगे बाद में। प्रोसीजर, प्रोसीजर में दो होते हैं, एक पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, आओ देखो, डायरेक्ट प्रैक्टिकली लूँ क्या, सीधा सीधा ये थ्योरी तुम पढ़ो यार, थ्योरी तुम पढ़ो, मैं सीधा प्रोग्राम पे जाता हूँ। प्रोग्रामिंग से समझाना मेरे को कभी भी आसान जाता है, सो मैं ना प्रोग्रामिंग से जाता हूँ। राइट एन अपेक्स प्रोग्राम टू इंसर्ट अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के अंदर है ना, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने का है। ठीक है, चलो ये प्रोग्राम लेता हूँ, इसको डायरेक्ट समझाता हूँ इससे। चलो, तो इसको मारो क्लोज, यहाँ से न्यू, क्या, अपेक्स क्लास, क्लास का एक नाम देते हैं, क्लास का नाम देते हैं कॉन्टैक्ट हेल्पर, कॉन्टैक्ट हेल्पर। ठीक है, कॉन्टैक्ट हेल्पर नाम से क्लास क्रिएट करी, इसको क्लोज कर देता हूँ। सो मैंने क्लास क्रिएट किया कॉन्टैक्ट हेल्पर नाम के। पहले हम क्या करते थे, इसके अंदर ही सारी मेथड डिस्प्ले वो करते थे, तो अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी ध्यान से सुन लो, हमारी यूज केस क्या है, बाय द वे हमारी यूज केस ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक प्रोग्राम लिखना है हमको जिसमें हम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाए। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट है यूजर इंटरफेस पे, लेकिन हमारे लिए तो कॉन्टैक्ट एक क्लास है। हमारे लिए कॉन्टैक्ट क्या है, एक क्लास है। तो अगर मुझे किसी भी क्लास को एक्सेस करना है, किसी भी क्लास को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वैसे बाय द वे ये जो क्लास है ये तो पहले से बनी हुई है। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई, अपनी खुद की क्लास, जिसका नाम रखा कॉन्टैक्ट हेल्पर। एक क्लास बनाई मैंने, कस्टम क्लास बनाई जिसका नाम रखा कॉन्टैक्ट हेल्पर। ठीक है, इसके अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ, मेथड।
ठीक है। मेथड दो तरह की होती है, मेथड दो तरह की होती है। कौन कौन सी? प्रोसीजर और फंक्शन। मैं मेथड बना रहा हूं, आप मुझे बताना कि वो जो मेथड मैं बनाऊंगा वो प्रोसीजर है या फंक्शन है, वो आप बताओ मुझे अभी। ठीक है, चलो, तो मैं एक मेथड बना रहा हूं, तुम ध्यान से देखो। पब्लिक वॉइड एक मेथड का नाम जैसे कि क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, ये हो गई एक मेथड। ठीक है, मेथड के बाद भी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट आते हैं। अब आप बताओ, मैंने यहाँ पर ये क्लास है, मेथड हमेशा क्लास के अंदर रहती है, मेथड क्लास के बाहर नहीं रहती है, क्लास के अंदर रहती है। क्लास का ही कंपोनेंट होता है मेथड। अब आप मुझे ये जो बताओ, ये जो मैंने मेथड बनाई है, मेथड क्यों है? क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसको मेथड बोलो आप। ठीक है, इसको सब प्रोग्राम मत बोलो, सब प्रोग्राम बोलते लेकिन आप मेथड बोलो इसको। वैसे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम ही है, लेकिन इसको मेथड बोलो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेथड है, ये फंक्शन है या प्रोसीजर है? ये फंक्शन है या प्रोसीजर है? मैं अनम्यूट करने की कमांड भी दे देता हूं आप लोग को, आप चाहो तो चैट पे भी बोल सकते हो। ये मेथड बनाई मैंने, ये एक मेथड बनाई अपने मन की मेथड, जिसका नाम है क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट। अब आप ये बताओ कि ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है, प्रोसीजर है या फंक्शन है? प्रोसीजर है, बिल्कुल सही। क्यों प्रोसीजर है? अरे इसके आगे वॉइड लगा हुआ है, वॉइड लगा हुआ है इसके आगे, देखो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाली है, ये बस अपना काम निपटाएगी। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा ना मैं, ये इसका बॉडी है। इसने ये जब मेथड कॉल होगी, ये जब मेथड कॉल होगी तो ये अपना काम निपटाएगी, बात खत्म। भूल जाओ, उसके आगे कुछ नहीं देना है इसने। ठीक है, आओ देखो, चलो, तो एक मेथड मैंने बना दी इसके अंदर। ओके, अब यहां से मैं अपना काम करता हूं। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली क्या करना है मुझे? आई नीड टू इंसर्ट अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो कॉन्टैक्ट को क्लास मानते हैं हम लोग, ओआरएम में हम कॉन्टैक्ट को क्लास मानते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट यानी कॉन्टैक्ट क्लास, इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट CON इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट क्लास या कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू CON, विथ रिस्पेक्ट टू CON अब अपन रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू CON, तो CON डॉट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी फील्ड्स हैं उसकी, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है मुझे, कैसे ना याद हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। बट तुमको क्या करना है, सिर्फ कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ और व्यू फील्ड्स करो। एक चीज और पता होना चाहिए कि जब भी अपन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कभी भी ना एक बार ये देख लेना आपका यूजर इंटरफेस, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर जैसे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी है। वो यहाँ से नहीं समझ में आएगा आपको, यहाँ तो क्लियर कट फील्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगी, बट इसमें से कौन सी मैंडेटरी है बिना जिसके रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता, तो वो एक बार ना यूजर इंटरफेस पे जाके चेक कर लिया करो। तो जैसे हायरिंग में अपना वो जैसे कॉन्टैक्ट में दिख रहा है कि लास्ट नेम मैंडेटरी है ना, तो वो अब फील्ड्स नेम अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ। जैसे फर्स्ट नेम आ गया भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, यहाँ से उठाते जाना है इन सब चीजों को, यहाँ से कॉपी करो वहां पेस्ट करो। ठीक है, ऐसा है। चलो, अब मुझे थोड़ा बहुत याद है तो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जैसे कि अपेक्स, अपेक्स, अपेक्स लास्ट नेम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी आपको, लास्ट नेम। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपेक्स इक्वल्स टू अपेक्स कॉन्टैक्ट, अपेक्स कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। क्या नजर आ रहा है बताओ? किसी ने कुछ गेस, किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया क्या यहाँ पे? किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया क्या यहाँ पे? क्या नजर आ रहा है? डेटा हम्म टाइप। हम्म किसी ने कुछ तो भी ऑब्जर्व किया क्या यहाँ पे? अभी बताओ। फील्ड का डेटा टाइप। फील्ड सजेशन। का डेटा टाइप या फील्ड का नाम ही आ रहा है? फील्ड का नाम आ रहा है सजेशन। फील्ड का नाम आ रहा है, सजेशन, बिल्कुल सही, बहुत सही वर्ड उठाया अमीरा ने। अरे भाई, इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, ये आपको यहाँ नहीं मिलता, ये आपको यहाँ नहीं मिलता। देखो, ये सेम चीज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट CON, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू, न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ भी बनाया। ओके, CON नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का? कॉन्टैक्ट का। अब करता हूँ CON डॉट, कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं। बराबर है, आपको टाइप करना पड़ता है लास्ट में इक्वल्स टू ऐसा, यहाँ पूरा टाइपिंग एफर्ट है। अब यही चीज यहाँ देख लो आप, यही चीज यहाँ देखो आप। ठीक है, जैसे ही आप आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया,
ऑब्जेक्ट का नाम है CON। बहुत ध्यान से समझो, देखो अपेक्स कितना इजी है लिखने के लिए, कितना इजी है। ठीक है, कॉन्टेक्ट डॉट फर्स्ट नेम जैसे ही आप शुरू करते हो, अब देखो जैसे ही आप शुरू करते हो, ठीक है, CON डॉट, वैसे ही आपको कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट की सारी फील्ड्स के नाम आ जाते हैं यहाँ पे, सारी फील्ड्स के नाम, सारी फील्ड्स के नाम आ जाते हैं। और उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे ये और फिल्टर आउट होते जाता है। जैसे मैंने FI किया तो उसने बता दिया, अब मुझे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू, ये वे नहीं है अपेक्स, ठीक है, CON डॉट, देखो सारी, मैंने L टाइप किया तो L आ गया, LAS पे गया, T, समझ रहे हो, नेम, देखो ये अपना फिल्टर होते जा रहा है। ये इंटेलिजेंस आपको, इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसको हेल्प बोलते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो पे नहीं मिलता है, ये मिलता है डेवलपर कंसोल पे, ये मिलता है डेवलपर कंसोल पे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ ये रेड मार्क दिख रहा है, ये रेड मार्क, ये रेड मार्क है कि आपका एरर है यहाँ पे। और ये एरर मतलब ये रियल टाइम पे कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, रियल टाइम पे कंपाइल हो रहा है। अगर कुछ एरर है तो वो यहीं आ जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं। तो अभी कैसा है, मैंने C1 डाल के छोड़ दिया इसलिए एरर नजर आ रहा है, राइट, तो वो यहाँ पे सब नजर आते हैं। तो ये है इसका फायदा, व्हेन यू टाइप द प्रोग्राम इनसाइड डेवलपर कंसोल, डेवलपर कंसोल में जब टाइप करते हो ना, एक तो आपको इंटेलिजेंस मिलता है और रियल टाइम कंपाइलेशन मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको फील्ड्स वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं, आप यहाँ यहाँ से उठाते चले जाओ और फील्ड्स की वैल्यू देते जाओ। तो टाइटल, टाइटल 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 कुछ भी दे सकता हूँ, टाइटल 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 सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। ठीक है, अच्छा जब ये सही हो जाएगा, देखो यहाँ से ये अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, ये अपने आप ही हटने वाले हैं, देखो हट गए। तो ये रियल टाइम पे कंपाइल होता है, सी प्रोग्रामिंग पे आप सेव करते हो, उसके बाद में आप कंट्रोल F9 या F9 प्रेस करते हैं तो कंपाइल होता है। यहाँ पे सब रियल टाइम पे चलता है ना। CON टाइटल के बाद में जैसे कि ईमेल चाहिए मुझे, तो ईमेल, ठीक है, ईमेल सैम्पल टेस्ट @test.com, CON डॉट, ठीक है। और कुछ जैसे कि फोन, PH करूंगा तो फोन आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फोन इज ऑल्सो स्ट्रिंग वैल्यू, ये सब ख्याल रखो, ठीक है। देन CON डॉट फैक्स होता है क्या, यहाँ पे फैक्स होता है, देखो फैक्स इक्वल्स टू, ठीक है, अगेन गिव सम वैल्यू, फैक्स इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, कुछ और जैसे कि CON डॉट लीड सोर्स, लीड सोर्स एक पिक लिस्ट है, तो लीड सोर्स जो होता है वेब, फोन, इनमें से कोई भी रहता है तो आई एम गिविंग वेब। ठीक है, एंड देन लाइक CON डॉट और कोई वैल्यू जैसे कि हाँ मेलिंग सिटी वगैरह, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग सिटी है, तो मेलिंग सिटी इक्वल्स टू नागपुर। CON डॉट मेलिंग सिटी के बाद में मेलिंग 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 स्टेट, सिटी कंट्री स्टेट, मेलिंग स्टेट इक्वल्स टू महाराष्ट्र। CON डॉट मेलिंग, मेलिंग में कुछ बताया क्या, मेलिंग सिटी स्टेट कंट्री, मेलिंग कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। ठीक है, और कुछ देना है काफी इतना। ठीक है, देखो इतना सब हो गया है ना, ये पूरा हो गया। ये हमने क्या क्रिएट किया, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, एरर्स हट गए। अब ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है लेकिन ये ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला टेम्पररी ऑब्जेक्ट CON में है। इसको CON से लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, कॉन्टेक्ट के अंदर, तो उसके लिए आपके DML फायर करो, DML स्टेटमेंट, DML कौन सी, इंसर्ट, किसको इंसर्ट करना है, किसको इंसर्ट करना है, CON को इंसर्ट करना है। ठीक है, और इंसर्ट हुआ या नहीं ये चेक करना है, तो इफ CON डॉट ID, देखो ID भी आ गया, CON डॉट ID इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो नल नहीं है, यहाँ से प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी। लेट मी टेल यू दिस, क्यों, क्योंकि अभी टाइपिंग एफर्ट्स ना बहुत कम हो जाते हैं सब। जैसे पहले मुझे ये पूरा टाइप करना पड़ता था, ये पूरा टाइप करना पड़ता था, अब ये चीजें ना डायरेक्टली आएंगी। तो अपेक्स कैसा है ना, बहुत आसान है, बस ये था कि एक वे है, धीरे 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 करके समझ में आता है। तो वो इनिशियली स्टार्ट हमेशा यहीं से होता है, एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो से ही होता है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम लोग यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ मेथड्स वी कुड इवन राइट डाउन द कोड इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर हम लोग,
क्लास के अंदर मेथड होती है, मेथड के अंदर आपका जो भी काम होता है, तो इसकी मदद से ना आप क्लास के अंदर कोड लिख सकते हो, ठीक है। सो हाँ, सिस्टम डॉट डीबग वही चीज है जो इसके पहले किया मैंने, सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग, क्या बोलना है, हाँ, दी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली की स्पेलिंग क्या होती है यार वैसे, पता नहीं, विद द आईडी इक्वल्स टू प्लस प्लस CON डॉट ID, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझो, मैंने ये पहले भी बताया था आपको, रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है, ठीक है। ये स्टार मार्क यहाँ दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये सेव नहीं हुआ है। तो आप कंट्रोल S प्रेस करिए, सेव करना है तो सेव करने के लिए कंट्रोल S, ठीक है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो अब यहाँ पे लिख के आ रहा है सेविंग, और ये सेव हो चुका है, ठीक है। ये अब जो है वो सेव हो चुका है। तो अब ये सेव हो चुका है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो आपके पास में एग्जीक्यूट का बटन होता है, तो आप एग्जीक्यूट कर ले। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है ना। तो अब इसके एग्जीक्यूट करने का तरीका समझो, चलो। तो यहाँ पर आपको बस इसको कॉल करने के लिए, मतलब इस क्लास, देखिए क्लास को कॉल करना है, क्लास के अंदर ये जो पूरा रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ये पूरा रिकॉर्ड क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस मेथड की। तो एक्चुअली हमें कॉल इस मेथड को करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्लास के थ्रू जाना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। कि आपको कॉल करना है चाइल्ड को, लेकिन आपको पेरेंट के साथ में कॉल करना पड़ता है। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। यू नो दिस इज समथिंग जो है, ये दिस इज हिडन टू यू, ये हिडन है। इफ यू वांटेड टू यूज दिस, इफ यू वांटेड टू कॉल दिस मेथड, यू नीड टू गो अलोंग विद द नेम ऑफ क्लास का। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं मैं, कैसे कॉल करूं इस मेथड को, क्योंकि जब ये मेथड कॉल होगी तब ये कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में ये सारे रिकॉर्ड क्रिएट होंगे, और ये रिकॉर्ड जाके इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ तब होगा, this whole thing happens when you call this particular method. So if you wanted this record to be get inserted, calling this method is very essential. This we understand and this we have understood this. तो अभी कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार फिर से एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो की मदद लेनी पड़ेगी। चलो वही तरीका है, ठीक है। सी दिस इज योर क्रिएटेड क्लास, आपने ये क्लास बनाई है, ये कोई डिफॉल्ट क्लास नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बिल्कुल वही है। और ये भी, इसको भी शॉर्ट करने वाला हूं मैं, डोंट वरी, इन द नेक्स्ट लेक्चर इसको भी मैं शॉर्ट करके दूंगा। बट आज तो यही बताऊंगा मैं, आज तो यही प्रैक्टिस करोगे आप। तो एक क्लास बनाई है मैंने, कौन सी क्लास, कॉन्टैक्ट हेल्पर, उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। CONH कॉन्टैक्ट हेल्पर इक्वल्स टू न्यू, क्लास का नाम मेक इट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है, क्या किया आपने, ये क्लास जो आपने बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, अब मेरे ख्याल ये सिंटैक्स तो सबको क्लियर हो चुका होगा। अब मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंटैक्स क्या है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ये न्यू कीवर्ड है, इसके साथ में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना पड़ता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है, एक ऐसी मेथड होती है जिसका नाम क्लासना के नाम से सेम होता है, जिसका काम होता है मेमोरी अलॉट करना। ये सब चीजें हो चुकी है, ठीक है। अब देखो इस मेथड की मदद से, इस मेथड की मदद से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। लेट्स सी, देखो अभी इंपॉर्टेंट समझो, ये फंक्शन कॉल होगा तभी ये सारी चीजें होने वाली है। अगर ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये सारी चीजें होने वाली है, रिकॉर्ड जो आपने बनाया वो इंसर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मेथड कॉल करनी है, ये मेथड बिना इसका नाम पुकारे नहीं हो सकती। तो पहले आपने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। कौन सा इंस्टेंस है, CONH नाम का, ठीक है। अब देखो भाई, अगली मेथड, स्टेप नंबर 1 के बाद में स्टेप नंबर 2, मैंने अगर मैं स्टेप नंबर 1 लिखूं यहाँ पे, चलो कमेंट लिख देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 क्या, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट जो आपने बनाई, क्लास जो बनाई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये स्टेप नंबर 1 अज्यूम कर लो। एंड देन स्टेप नंबर 2 क्या करिए, कॉल द मेथड विथ विथ ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी मदद से। तो आपने क्या ऑब्जेक्ट बनाया है, CONH डॉट नहीं, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा, सॉरी। तो हाँ, ये मेथड कॉल करो, ठीक है। कॉल दिस मेथड, ठीक है। और मेथड है इसलिए ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ये इस तरह से। तो अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली CONH ये जो आपने बनाया है ना, इसकी मदद से ये मेथड कॉल हो जाएगी। और जैसे ये मेथड कॉल होगी,
ये मेथड सबसे पहले ये काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, उस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा, और क्योंकि इंसर्ट हो चुका है, आईडी नल नहीं है, तो ये मैसेज भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है, ये इस तरह से काम कर रहा है। बाद में ये डिपेंडेंसी भी हटा देंगे अपन, ये डिपेंडेंसी भी हट जाएगी आगे चल के, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो मैंने बोला ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और आपको अगर आप नोटिस करो ना, तो आई हैव स्टार्टेड प्रोग्रामिंग फ्रॉम हियर। पहले पूरा प्रोग्राम मैं यहीं पर लिखता था, पूरा प्रोग्राम यहीं लिखते थे हम लोग। अब धीरे धीरे करके हमने इसको मिनिमाइज करना शुरू किया, धीरे धीरे करके हमने इसको जो है कट डाउन कर रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो रहा है। अभी भी कुछ चीजें बची हुई है, अभी भी कुछ चीजें बची हुई है। क्या है कि आपको यहाँ से कॉल करना पड़ रहा है, चलो ठीक है, उतनी तो बर्दाश्त कर लेंगे, बाद में ये भी हट जाएगी। ठीक है, सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। चलो यहाँ से कोई देखें, यहाँ पर आ गया। तो अब क्या हुआ कि वहां से कंट्रोल आया यहाँ पर, ये मेथड कॉल हुई, ये मेथड कॉल होने के बाद में ये जो काम था वो हुआ। और ये क्योंकि ये एक प्रोसीजर है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, इसने कुछ रिटर्न नहीं करना है। हालांकि आपने यहाँ पर एक सिस्टम डॉट डीबग दे रखा है, तो उसी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग, अगर जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है इसके साथ। ठीक है, क्या रिकॉर्ड है ये, अपेक्स कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। आओ देखो, चलो कॉन्टैक्ट में चलो, रिसेंट रिकॉर्ड सेक्शन में दिख जाएगा ये अपेक्स रिकॉर्ड आ गया पूरा। सो ये है बेसिकली एक्चुअल प्रोग्रामिंग का तरीका। अब इसमें और मॉडिफिकेशंस होंगे, धीरे धीरे करके और मॉडिफिकेशंस होंगे। तो आप जो है, ये अभी मैंने आज एक ही चीज बताई है। सबसे पहले ये कि मेथड के दो टाइप होते हैं, प्रोसीजर ये जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शंस आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल ये प्रोसीजर में अब दो टाइप होती है, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड। ये है नॉन पैरामीटराइज्ड, इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर। यही चीज मुझे आगे भी और पढ़ानी है अभी, और ये डिस्कशन होने का है अभी। प्रोसीजर्स की दो टाइप होते हैं, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड। अभी जो एग्जांपल लिया अपन ने वो है नॉन पैरामीटराइज्ड। ये एक प्रोसीजर बनाया मैंने, इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है। दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर इज कॉल्ड एज नॉन पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये इस पे ये पूरा थ्योरी पढ़ो, ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, और देखो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये वाला भी है। ठीक है, ये भी सॉल्व करो। हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का है, और उसके साथ में एक पोजीशन रिकॉर्ड, वही प्रोग्राम है जो आप, ये प्रोग्राम आपने इसके पहले बनाया है, बस इसको उधर बनाया, एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो पे बनाया। अब इसके लिए आप एक क्लास बनाइए सबसे पहले, उसके एक अंदर एक मेथड बनाइए, एक प्रोसीजर बनाइए, और प्रोसीजर के अंदर वही कोड करना है तुमको, वही कोड है जो इसके पहले तुमने किया है, और फिर उसको कॉल करना है। ठीक है, तो ये करो, कल फिर देखते हैं इसके आगे।